A warm welcome to all in Fellowship of Love and Grace Church, Navi Mumbai. Fellowship of Love and Grace कलीसिया में आप सबको स्वागत. Before we hear the word, there is some announcements. वचन सुनने के पहले कुछ सूचनाएं. मैं विश्वास करता हूँ आप सुरक्षित हैं. I believe you are safe. And you broke bread at home. आप घर में रोटी तोड़ा है. Wednesday we are having our Bible study as usual in the evening 7 to 9. बुधवार के दिन हमारा बाइबल का पढ़ाई होंगे 7 से 8 शाम को. और अगले संडे we will have children work on Zoom. Next Sunday we will have children's work on Zoom in the evening, Sunday evening 6 to 7, 1 hour. Children can join on Zoom for Sunday school. I want to encourage you all to continue to pray in your prayer chain. आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ आप अपने prayer chain में प्रार्थना कीजिए. वो हम जारी रख रहे हैं. और on Thursday we have our leaders meeting. गुरुवार के दिन कलीसिया का गों का सभा रहेंगे शाम को 7 to 8 from 7 to 8 in the evening. Also check with your house church leaders about your house church meeting through WhatsApp or Zoom. अपने घर सभा के अगुओं से आप कांटेक्ट में रहिए. अपने घर सभा जो ऑनलाइन में जो व्हाट्सएप या जूम में हो रहा है. On 31st of May there will be a special prayer on that day. 31st May को एक खास प्रार्थना रहेंगे हमारा रविवार का सभा के साथ. God bless you. Hear the word. 13वां और 14वां वचन हम पढ़ेंगे. यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, कि टीटियों के देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वा अपनी प्रजा में मेरी फैलाओ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश के ज्यों के त्यों कर दूंगा. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. He is talking to Solomon. और अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर जो है सुलेमान राजा से बात कर रहा है. He is established the temple. उन्होंने मंदिर को बना दिया है. And after that God is telling him. और उसके बाद परमेश्वर सुलेमान राजा को कुछ बात कह रहा है. And you know Solomon, he was the wisest man in the world. आप जानते हो कि सुलेमान राजा जो है इस जगत के सबसे बुद्धिमान राजा थे. But see how he is hearing God. लेकिन देखो वो परमेश्वर से कैसे सुन रहा है. And are we hearing God? क्या हम भी परमेश्वर से बातें सुनते हैं? So he telling God is telling Solomon that when I stop rain, when everything is going haywire, when there is plague coming in upon the land. तो परमेश्वर जो है सुलेमान राजा से कह रहा है कि जब मैं वर्षा को बंद करता हूँ, जब मैं आपके देश के ऊपर कुछ ऐसी परेशानी ले आता हूँ, ये महामारी ले आ रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज ले आ रहा हूँ. How God is going to hear our prayers and heal our land. तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कैसे सुनेंगे और कैसे हमें चंगाई देंगे. So first thing I want to tell you is, it is God who sometimes
shut the rain or plague that comes among us. तो मुझे आपसे पहली बात ये कहना है कि कभी कभी परमेश्वर ही वर्षा को बंद करता है या हमारे देश पर महामारी ले आता है। And he's saying it is not unbelievers, ये दूसरे अन्य जाति के लोग नहीं है, it is God's people. ये परमेश्वर के लोगों के बारे में है। When they humble themselves, जब वो दीन बने, pray, प्रार्थना करे seek और God, मेरे दर्शन के खोजी बने and turn from their wicked और ways, अपनी बुरी चाल से फिरे, then I will heal the land. तब मैं देश को चंगाई दूंगा। So who should turn from the wicked ways for healing? तो सवाल ये है कि किसको अपने बुरे चाल से फिरना है ताकि देश में चंगाई आए? Who should repent? किसको पश्चाताप करना है? Many times we point finger at other people. बहुत बार हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं। Oh, unbelievers should repent. ओ, जो अविश्वासी लोग हैं उन्हें पश्चाताप करना है। And I want to tell you, it is God's people. Here it says, my people, God's people should repent. 14वां वचन कहता है कि परमेश्वर की प्रजा, मेरी प्रजा के लोग, मतलब परमेश्वर के लोग को पश्चाताप करना है। There is no use if an unbeliever repent. क्या फायदा अगर एक अविश्वासी पश्चाताप करता है? Because they don't believe in Jesus. वो यीशु मसीह पर विश्वास तो नहीं करते, They don't believe in God. वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, They have no faith in God. परमेश्वर पर कोई विश्वास ही नहीं है। Then God cannot answer their prayers. परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर कैसे देंगे? They don't have a relationship with उनका God. कोई रिश्ता ही नहीं है परमेश्वर के साथ। So how much the unbeliever repent, तो कितना भी अविश्वासी पश्चाताप करे या सॉरी बोले, without believing in Jesus, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करे, their prayer have no, their actions and prayer have no use. वो जो भी कार्य करते हैं या जो भी बोलते हैं उसमें कोई मतलब नहीं है। That is why some people go for pilgrimage, इसलिए कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, good works, अच्छे कार्य करते some हैं, beat themselves. कुछ लोग अपने आप को मारते हैं। These things have no value. इसका कोई मोल नहीं है। I done something wrong, so I beat myself. मैंने कुछ गलत किया इसलिए मैं अपने आप को मार रहा हूँ। But you don't have faith in Jesus. लेकिन अगर आपका यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास नहीं Your है, prayer cannot be answered. आपका प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलेगा आपको। It is the people of God. We need to repent. ये बात पे आके रुक जाती है कि परमेश्वर के लोगों को पश्चाताप करना है। Then God will hear. तब परमेश्वर सुनेंगे। And then He will answer. तब वो जवाब देंगे। We have done wrong in our lives. हमने अपने जीवन में गलत कार्य किए हैं। Every day we does wrong. हर दिन हम गलत करते हैं। That is why Matthew chapter 6 verse 12. इसलिए मत्ती का 6:12 कहता है, When Jesus taught us to pray, जब यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, pray like this. ऐसे प्रार्थना करो, Forgive our sin as we forgive others. जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। So it is a point we need to ask for our forgiveness for our sins. तो बात यह है कि हमें अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना है। So God wants His people to repent in our prayer time. तो सबसे पहली बात परमेश्वर चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें हम क्षमा मांगे। Have a habit of repentance in our prayer एक time. आदत बना दो कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, हम पश्चाताप करें। John chapter 1 यूहन्ना का 1 verse 8 to 10. 8 से लेके 10 He talks about, it is a fool who says that he don't done anything wrong. ये लिखा है कि सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति ही है जो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। 1 John chapter 1. क्षमा कीजिए, वो 1 यूहन्ना का 1 का 8 है। 1 John chapter 1 8 to 10. 1 यूहन्ना का 1 8 to 10. 8 से लेके 10। He says, if we say we are not done any sin, we are lying. 1 यूहन्ना का 1 का 8 कहता है कि यदि हम कहें कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हम झूठ बोल रहे हैं। It is important we confess our sin, and Bible says He is faithful to forgive us. बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों को कबूल करें और शास्त्र में लिखा है कि वो विश्वास योगी है और वो हमारे पापों को क्षमा करता है। When we come and it is important, my dear brothers, we need to pray, we need to repent of our sin. मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम आते हैं प्रार्थना करने
करने के लिए हमें क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। You know, otherwise we can have lot of prayer. नहीं तो क्या होता है कि हम बहुत प्रार्थना तो करते हैं, We can fast and pray. हम उपवास रख के भी प्रार्थना We करते can हैं, have chain prayer. हम चेन प्रे भी रखते हैं, But if you don't have that repentance, लेकिन अगर हम अपने हृदय से पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, you know, God won't heal our land. परमेश्वर हमारे देश को चंगाई नहीं देंगे, You know, God won't work in our midst. परमेश्वर हमारे बीच में कार्य नहीं करेंगे। God is not looking at unbelievers, He is looking at His people. परमेश्वर अविश्वास को नहीं देख रहे, वो अपनी प्रजा के लोगों को देख रहे हैं That we may repent and pray. कि हम पश्चाताप करें और प्रार्थना करें। And here it's they turn from their wicked ways. और यहाँ पे दो इतिहास में लिखा है कि हम अपने बुरे काम से मुड़े। You know, and it is important. We need to stop doing the things we are wrong things which we are doing. और एक इतिहास के 7वें अध्याय में लिखा है कि हम बुरे काम से मुड़े, मतलब जो हम गलत कार्य कर रहे हैं उसे बंद करना है, You know, we need to turn from there. उससे मुड़ना है, We need to stop it. उसे नहीं करना है। You know, how we talk and if we're getting angry and all those things, we need to stop. हम कैसे बातें करते हैं, अगर हमें गुस्सा आता है तो ये सब चीज करना बंद करना है। You know, bad words we need to stop. गलत शब्द या कभी कभी हमारे मुंह से गाली निकलती है, उसे ये सब करना हमें बंद करना है। You know, many things we need to stop. बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे करना हमें बंद करना है। And God won't answer our prayers if we do all those things and अगर- keep praying. It have no अगर value. हम ये सब चीज गलत चीज करते ही जाएंगे और प्रार्थना भी करते जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए बैठते Ask हैं। God, Lord, I repent of my sin. परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर, मैं अपने जो भी गलत कार्य, जो भी पाप से मैं मुड़ता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, You know, forgive me, Lord मुझे Jesus. क्षमा कर प्रभु। You know, let's learn have this habit in our तो life. क्यों ना हम ये सीखे, इसे एक तरीके से एक आदत बना दो हमारे प्रार्थना एक जीवन You में। know, develop prayer in your life. अपने प्रार्थना एक जीवन को और मजबूत बनाइए। You know, if you're even in lockdown, if you're not developed a prayer life till now, cultivate that अगर again. अब तक इस लॉकडाउन के समय में आपने अपने प्रार्थना को शुरू नहीं किया, प्रार्थना करना शुरू नहीं किया, प्रार्थना के जीवन को मजबूत नहीं किया है, कोई बात नहीं, अब से शुरू करो। You know, that is why God given us lockdown, इस कारण तो परमेश्वर ने हमें लॉकडाउन दिया है, so that we may pray, ताकि हम बैठ के प्रार्थना करें, sit with Him. परमेश्वर के साथ समय बिताइए। You know, as we pray, you know, have a habit of repentance. जैसे हम प्रार्थना करते हैं, एक आदत डाल दो, बना दो कि हम प्रार्थना करते करते हम पहले क्षमा मांगे। You know, God is not looking to people outside, unbelievers, but us to repent. परमेश्वर बाहर के लोगों की ओर नहीं देख रहे, लेकिन वो हमारी ओर देख रहे ताकि हम पश्चाताप करें। So today, as we break bread, तो आज जैसे हम रोटी तोड़ेंगे, you know, let's repent on our sins and then break bread. हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे परमेश्वर से।